Hello everyone, I'm Monica Rana. This is Jago Himachal 365 Dar Ke Nahi Dat Ke and you're watching Hillquest News channel. So here's top news at this hour. 921 cases, 38 deaths in Himachal Pradesh. As many as 921 COVID cases were reported in the state, taking the tally to 1,91,251. Besides, 38% died of the virus in the past 24 hours. 12 deaths were reported in Kangra, 6 in Shimla, 4 in Mandi, 3 each in Bilaspur, Solan and Hamirpur, 2 each in Kullu, Una and 1 each in Sirmaur, Lahul Spiti and Chamba. The highest number of 298 cases was reported in Kangra, followed by 104 in Shimla, 95 in Mandi, 86 in Chamba, 80 in Solan, 66 in Hamirpur, 56 in Kullu, 44 in Una, 35 in Bilaspur, 31 in Sirmaur, 14 in Lahul Spiti and 12 in Kinnaur. We notify COVID hospitals with no positive case, said Chief Minister Jairam Thakur. Chief Minister Jairam Thakur said that gradual efforts should be made to denotify dedicated COVID hospitals that have no infected persons admitted to facilitate the treatment of patients of other diseases. He said this while presiding over a virtual meeting with all deputy commissioners, SPs, chief medical officers, principals and medical superintendents of all medical colleges of the state. 8 arrested in highway shootout case. The Nalagarh police are yet to find out the motive behind a daylight shootout which took place on the Baddi-Nalagarh highway at Khera village, in which one person was killed and 4 others were injured on May 24. Though an old dispute is stated to be the reason, as cross FIRs have been registered by the two factions in the past. What caused the rivalry is yet to be known. The shootout took place in the afternoon during the curfew hour on the main highway, which indicates that there was little fear of law among these miscreants. It not only fled the spot after the shooting, but it has put a question mark over hundreds of CCTVs installed for surveillance by the Baddi police. Baddi SP Rohit Malpani said a special investigation team is probing the case in which 2 country-made pistols, a Scorpio, 2 Swift cars and other weapons like swords, iron rods, etc. have been taken into possession. Tenders invited for widening of Pinjore-Nalagarh Road. The National Highways Authority of India (NHAI) on May 28 invited tenders for the widening of the 31-kilometer Pinjore-Nalagarh stretch for the National Highway 105 to 4 lanes. Only 17.37 km of the highway lies in Himachal, while the remaining is in Haryana. The bids will be opened on July 13. The tender value have been pitched at rupees 731.67 crore and once allotted, the project is to be completed within 910 days. The process to acquire land is underway and compensation for structures acquired is also being disbursed, said NHAI Regional Officer GS Sangha. Himachal soldiers dies of bullet injury. A soldier of the army from Bilaspur district reportedly died following a bullet injury at Jammu. It was learnt that the army authorities informed the family of Havaldar Sandeep Kumar of Khuri village in Bakroa Panchayat of Ghumarvi subdivision of Bilaspur that the victim had committed suicide with his service gun. Officials said it was not immediately clear whether he died of accidental fire from his own weapon at Sunal camp in Akhnur sector or was it a case of suicide. It was reported that when his friend heard the sound of gunfire, they rushed to him and found him seriously injured. He was taken to Army Hospital and was declared dead. India reports 1,32,788 new COVID-19 cases, 3,207 deaths. Daily positivity rate dips to 6.57%. The coronavirus spread in India has started shrinking. The country has been witnessing a sharp fall in daily COVID-19 cases. The weekly positivity rate has dropped below 5% in 344 districts, nearly half of India's 718 districts. The active case load has been witnessing a fall of almost a lakh daily for the past few days. Deaths due to COVID-19 complication has dropped below 3,000 for the past 2 days. All this indicate that COVID-19 second wave has started waning. High Court stays Sanwara toll notice issued to NHAI.
The High Court issued notice to the National Highway Authority of India on a PIL petition challenging the decision of collecting tax at the Sanwara Toll Plaza in Solan. The court also stayed the collection of toll till the next date of hearing and listed the matter for today, that is June 2nd. Apart from the NHAI, the court also issued notice to the central and state governments. A division bench comprising Chief Justice L. Narayan Swamy and Justice Anup Chitkara passed the orders on a PIL plea filed by Aditya Singhal. Cancer patient left in lurch at Tanda Hospital. Patients suffering from cancer in Kangra district are not getting treatment in Tanda Medical College, the only facility for the patient in the lower Himachal region. Many patients met Deputy Commissioner Rakesh Prajapati along with their panchayat representatives and demanded that the unit in the hospital should be restarted at the earliest. The super specialty wing has been lying closed since last month. The wing caters to cancer, cardio and neuro patient. However, it was converted into a COVID hospital. The patient alleged that they were undergoing chemotherapy in the Tanda Medical College, but they have not been able to complete their treatment as the facility has been closed. Many patients fear that a break in their chemotherapy can be life-threatening. CBSE Class 12 board exams cancelled amid COVID-19. The government on Tuesday cancelled the CBSE Class 12 board exam in view of uncertain conditions due to COVID-19. CBSE will take steps to compile result of Class 12 student as per well-defined objective criteria in a time-bound manner. In case some student desire to take the exam, such an option would be provided to them. He is becoming like Kim Jong-un. No one can raise boys. Rakesh Tikait on Prime Minister Modi. Taking a well dig at Prime Minister Narendra Modi, Bharatiya Kisan Union leader Rakesh Tikait tweeted, "Speaking against the Raja means getting punished. Is he the Raja? He is becoming like Kim Jong-un so that no one can raise his voice." He also criticized center over inflation of the country, saying that if anyone raises his voice against government, he is punished. 8 killed in cylinder explosion in Uttar Pradesh, building collapses. 8 people, including 3 children, have been killed when a double-story house in Tikri village here collapsed after an LPG cylinder explosion, police said on Wednesday. 7 people have been grievously injured in the Tuesday night incident and they have been rushed to Lucknow for better treatment, officials said. The LPG cylinder exploded in the house of one Nurul Hassan around 10 p.m. on Tuesday, which led to the double-story house to collapse. 8 people died in the incident while 7 others were seriously injured, District Magistrate Markandeya Sahi said. Delhi, Punjab and Uttarakhand had India's worst death rates in May. Delhi recorded a COVID death rate of 2.9% in May, the highest among big states in the country and more than double the national average during the month, 1.3%. 2 other states recorded deaths at more than double the national average, Punjab 2.8% and Uttarakhand 2.7% in the deadliest month of the pandemic, during which 119,183 fatalities were officially reported across India. This was the highest monthly toll reported by any country since the COVID outbreak began. Maggi maker Nestle admits 60% of its products not healthy. The world's largest food company Nestle, the maker of Maggi noodles, Nescafe and Kit Kat, has admitted in an internal document that around 60% of its products are not healthy. The report further stated that 96% of Nestle beverages, excluding pure coffee, and 99% of its confectionery and ice cream portfolio failed to meet a recognized definition of health. Biden to suspend Trump-era oil drilling leases in Arctic refuge. The administration of United States President Joe Biden is suspending oil and gas leases in Alaska's Arctic National Wildlife Refuge as it reviews environmental impacts of drilling in the remote region that has been the focus of a political fight for decades, according to 2 people who have been briefed on the administration plan. So this is all for this time. Stay connected and keep watching Hillcoast News channel. Thank you. Hello Himachal.
हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I am Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं गरिमा, ये है जागो हिमाचल 365 टीवी, डर के नहीं डट के, और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचारों की तरफ। सीबीएसई आईसीएसई की परीक्षाएं रद्द, पीएम बोले छात्रों की सुरक्षा और सेहत हमारी प्राथमिकता। देश में खात्मे की ओर कोरोना की दूसरी लहर। कोरोना कर्फ्यू 14 तक बढ़ाने की सिफारिश, बंदिशों पर अंतिम निर्णय 5 जून की कैबिनेट में। कोरोना कर्फ्यू 14 तक बढ़ाने की सिफारिश, बंदिशों पर अंतिम निर्णय 5 जून की कैबिनेट में। हिमाचल में सरकारी दफ्तर अब शनिवार को भी खुलेंगे। मई में सरकार की 500 करोड़ कमाई, 61% बढ़ा आबकारी राजस्व। मुश्किल वक्त में हम भारत के साथ, ब्रिक्स देशों के विदेशी मंत्रियों की मीटिंग में बोला चीन। जवाब दो वरना जाना पड़ेगा जेल, ममता के सलाहकार अल्पन पर केंद्र सख्त, भेजा नोटिस। 24 घंटे चल रहा राम मंदिर का निर्माण कार्य, अयोध्या में नींव भराई का काम जोरों पर। 2020 वर्ल्ड कप के लिए 28 जून तक का वक्त, आईसीसी ने मानी बीसीसीआई की बात। भारतीय खिलाड़ियों के परिवारों को इंग्लैंड दौरे पर साथ जाने की मिली मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। सीबीएसई आईसीएसई की परीक्षाएं रद्द, पीएम बोले छात्रों की सुरक्षा और सेहत हमारी प्राथमिकता। केंद्र सरकार ने 10वीं के बाद इस बार सीबीएसई व आईसीएसई 12वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में है। ऐसे माहौल में उन्हें परीक्षा का तनाव देना ठीक नहीं। हम उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। उन्होंने कहा 12वीं का रिजल्ट तय सीमा के भीतर और तार्किक आधार पर तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रों के हित को ध्यान में रखकर ही 12वीं की परीक्षा पर फैसला लिया गया है। छात्रों की सुरक्षा और सेहत हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इस पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। परीक्षा को लेकर छात्र, पेरेंट्स और टीचर्स सभी परेशान थे। इस फिक्र को खत्म किया जाना जरूरी था। ऐसे दबाव भरे माहौल में छात्रों को परीक्षा देने के लिए बाध्य किए जाना ठीक नहीं होगा। परीक्षा से जुड़े सभी पक्षों को इस समय छात्रों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। इस बैठक में सीबीएसई के चेयरमैन, शिक्षा मंत्रालय के सेक्रेटरी के अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल हुए। देश में खात्मे की ओर कोरोना की दूसरी लहर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के अप्रैल महीने में शुरू होने के बाद काफी तबाही मची। अब यह लहर खात्मे की ओर दिखाई दे रही है। पिछले कई दिनों से रोजाना सामने आने वाले संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। आंकड़ों को देखकर लग रहा है कि दूसरी लहर का पीक खत्म हो गया है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारें अभी भी सतर्क हैं और लॉकडाउन एकदम से हटाने को लेकर कोई हड़बड़ी नहीं दिख रही। पिछले एक हफ्ते से 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। बीती 28 मई से रोजाना से 2 लाख से कम मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना ब्रीफिंग में बताया कि एक्टिव मामलों में 50% की कमी आई है। एक दिन में 1.3 लाख एक्टिव केस घट गए हैं। 30 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर एक हफ्ते में रोजाना कम केस सामने आ रहे हैं, जो कि पॉजिटिव ट्रेंड है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 24 घंटे में कोरोना के 1.27 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना कर्फ्यू 14 तक बढ़ाने की सिफारिश, बंदिशों पर अंतिम निर्णय 5 जून की कैबिनेट में। कोविड समीक्षा बैठक में प्रदेश के जिलों ने कोरोना कर्फ्यू को 14 दिन तक बढ़ाने की सिफारिश की है। इसमें मौजूद सभी बंदिशों को 1 सप्ताह और आगे बढ़ाने की सहमति जताई गई। मौजूदा बंदिशें 7 जून सुबह 6 बजे तक लागू की गई हैं। इसके आगे का फैसला लेने के लिए 5 जून को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इसके चलते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिलों की फीडबैक के लिए मंगलवार को कोविड समीक्षा बैठक बुलाई। इसमें सभी जिलों के डीसी, एसपी और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों सहित एमएस जुड़े। सचिवालय में बताया गया कि इस बैठक में राज्य सरकार के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कोरोना की स्थिति और भविष्य की प्लानिंग को लेकर सभी से फीडबैक मांगा। खास है कि जिला के सभी अधिकारियों ने बैठक में वर्चुअली जुड़ते हुए एक सुर से कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों को 1 सप्ताह और आगे बढ़ाने का आग्रह किया। स्वास्थ्य अधिकारियों और सरकार की अफसरशाही ने भी इस हक में अपना मत दिया। हिमाचल में सरकारी दफ्तर अब शनिवार को भी खुलेंगे।
हिमाचल में सरकारी दफ्तर अब शनिवार को भी खुलेंगे। इसे लेकर जो गफलत थी वह दूर हो गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से किए गए आदेशों में यह कहा गया था कि पुराने आदेश शनिवार व रविवार को लागू होंगे, मगर सरकारी दफ्तरों को शनिवार को खुला रखने के संबंध में अलग से नोटिफिकेशन की गई है। मुख्य सचिव अनिल खाची के अनुसार शनिवार को भी सरकारी दफ्तर खुलेंगे और इनमें से 30% की क्षमता से ही कर्मचारी आएंगे। मई में सरकार की 500 करोड़ कमाई, 61% बढ़ा आबकारी राजस्व। आबकारी एवं करदान विभाग ने मई 2021 में कुल 500 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। ये राजस्व मई 2020 में अर्जित 310 करोड़ रुपए की तुलना में 61% अधिक हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आबकारी आंकड़ों को लेकर कहा कि महामारी की मौजूदा स्थिति के बावजूद मई में प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत 185 करोड़ रुपए, बिक्री कर वैट के अंतर्गत 234 करोड़ रुपए, राज्य कर के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए, अन्य कर और ड्यूटी के अंतर्गत 25 करोड़ और यात्री और वस्तु कर के अंतर्गत 6 करोड़ रुपए के राजस्व के रूप में अर्जित किए गए हैं। जबकि मई 2020 में प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत 118 करोड़ रुपए, बिक्री कर वैट के अंतर्गत 65 करोड़ रुपए, राज्य कर के अंतर्गत 108 करोड़ रुपए, अन्य कर व ड्यूटी के अंतर्गत 15 करोड़ और यात्री के वस्तु कर के अंतर्गत 3 करोड़ रुपए राजस्व अर्जित किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार ने लोगों के जीवन यापन में संतुलन बताते हुए वर्तमान महामारी की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ध्यानपूर्वक व्यापक कदम उठाए हैं। मुश्किल वक्त में हम भारत के साथ ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में बोला चीन। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मंगलवार को वर्चुअल मीटिंग हुई। वर्चुअल तरीके से हुई इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। चीन के विदेश मंत्री वांग ही के अलावा बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस अल्ब्रेटो फ्रैंक, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री ग्रेस नलेदी मंडिसा पंडोर ने भी भाग लिया। मीटिंग का एजेंडा मुख्य रूप से कोविड-19 से पैदा हुई दिक्कतें और इसी दौरान आपसी सहयोग था। उधर चीन के विदेश मंत्री वांग ही ने इस मीटिंग के दौरान कहा कि उनका देश इस मुश्किल दौर में भी भारत के साथ खड़ा है। पश्चिम बंगाल के शीर्ष नौकरशाह अल्पन बंदोपाध्याय को ट्रांसफर को लेकर केंद्र और बंगाल के बीच विवाद जारी है। अल्पन को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 51B के तहत केंद्र ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पूर्व चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय को इस नोटिस का जवाब 3 दिन में केंद्र सरकार को देना होगा। अगर उनका जवाब नहीं आता है तो जवाब से केंद्र सरकार संतुष्ट नहीं होती है तो उनके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 51B के तहत कार्यवाही या FIR दर्ज की जा सकती है। बता दें कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 51B के तहत कोई भी अधिकारी या कर्मचारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के किसी भी आदेश का अगर पालन नहीं करता है तो इसमें सजा का प्रावधान है, जिसके तहत 1 साल की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने अल्पन पर चार्जशीट जारी करने की बात कही है। 24 घंटे चल रहा राम मंदिर का निर्माण कार्य, अयोध्या में नींव भराई का काम जोरों पर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तेजी से काम चल रहा है। राम मंदिर परिसर का विस्तार 70 एकड़ से बढ़ाकर 107 एकड़ करने की योजना के तहत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम जन्मभूमि परिसर के पास 7,285 वर्ग फुट जमीन खरीदी है। मुख्य मंदिर का निर्माण 5 एकड़ जमीन पर किया जाएगा और बाकी जमीन पर संग्रहालय और पुस्तकालय जैसी केंद्र बनाए जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यास के महासचिव चंपत राय ने संवाददाताओं से बात में कहा कि मंदिर निर्माण का कार्य 24 घंटे चल रहा है। 12-12 घंटे की पाली में कार्य हो रहा है। लगभग 1,20,000 घन मीटर मलबा निकाला गया है। 1 फुट मोटी लेयर बिछाकर रोलर से कॉम्पैक्ट करने में 4 से 5 दिन लग रहे हैं। अक्टूबर माह तक काम पूर्ण होने की उम्मीद है। T20 वर्ल्ड कप के लिए 28 जून तक का वक्त, ICC ने मानी BCCI की बात। क्रिकेट की आलकमान ICC ने BCCI की अपील मान ली है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप पर अंतिम फैसला लेने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड को 28 जून तक का वक्त दे दिया है। 29 मई को हुई BCCI SGM में इस बात पर सहमति बनी थी कि T20 वर्ल्ड कप फैसला लेने के लिए ICC से थोड़े और वक्त की डिमांड की जाएगी। BCCI के आला अधिकारियों ने अपनी इस बात को 1 जून की ICC मीटिंग में रखा, जिस पर उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। T20 वर्ल्ड कप इस साल अक्टूबर-नवंबर में भारत में होना है, पर कोरोना की दूसरी लहर के आतंक ने इस पर खतरा मंडराया हुआ है।
इतना ही नहीं, भारत में कोरोना की तीसरी लहर की भी खबर जोरों पर है, जो कि T20 वर्ल्ड कप के आयोजन में रोड़ा अटकाने वाला एक और बड़ा फैक्टर है। हालांकि T20 वर्ल्ड कप को BCCI भारत से बाहर जाने देने के मूड में फिलहाल नहीं है। भारतीय खिलाड़ियों के परिवारों को इंग्लैंड दौरे पर साथ जाने को मिली मंजूरी। ब्रिटेन सरकार ने इंग्लैंड दौरे पर जाने वाले भारतीय पुरुष एवं महिला टीम के खिलाड़ियों, कोचिंग और स्पोर्ट्स स्टाफ के परिवारों को अपने परिजनों के साथ दौरे पर जाने की मंजूरी दी है। पुरुष टीम लगभग 4 महीने तक दौरे पर रहेगी। इस दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले एक न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलेगी, जबकि महिला टीम को 1 टेस्ट और उसके बाद 3 वनडे और 3 T20 में खेलना है। दोनों टीमों के सदस्यों के परिवार उसी चार्टर उड़ान से इंग्लैंड रवाना होंगे, जिसमें पुरुष एवं महिलाएं टीम सदस्य जाएंगे। उड़ान 3 जून को लंदन पहुंचेगी। यहां दोनों टीमें साउथहैम्पटन जाएंगी, जहां उनकी अनिवार्य क्वारंटाइन अवधि शुरू हो जाएगी। हालांकि क्वारंटीन की अवधि की पुष्टि की जानी बाकी है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण इस साल अप्रैल के मुकाबले में मई में वाहनों की बिक्री में भारी गिरावट देखने को मिली है। विभिन्न राज्यों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण देश की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की घरेलू बिक्री घटकर 35,293 इकाई रह गई है। इससे पहले अप्रैल में उसने 1,42,454 वाहन बेचे थे। निर्यात भी 17,237 इकाई से घटकर 11,262 इकाई रह गया है। हेलो हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I'm Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ।